So we'll continue with the sentencing chapter. I'll just give you a small brief explanation regarding the lectures of sentencing chapter and even the study notes regarding the sentencing chapter as to how to go about it. I will just simply say that from the point of view of the examinations, it is not that much essential. And even from the point of view of the practice in the trial courts, it is not that much essential. It is only in the later stages, in the High Court or the Supreme Court, where this chapter will acquire significance. And in some academic circles, this chapter will acquire great significance. But apart from that, for the practical purposes, this chapter is not that necessary. I'll be providing you with solitary confinements, extra notes, the medical jurisprudence situations on it. If you want to read it, you may read it, but I'll also explain you some brief summary regarding it. But in order to go about it, you don't need to memorize it. Just be sure that you understand it. Once you understand it, just move on. Do not dwell upon it, or do not think that I need to memorize it because I need to quote in the exams. Most often than not, you won't need to quote the provisions or the nuances that I am explaining of the punishment chapter of IPC. You don't need to just dwell a lot upon it. You just need to hear it once, and then I think the entirety of the chapter can be brushed aside once you understand it. एक बार आप समझ लीजिए, उतना ही इसका पर्पस है, उससे ज़्यादा उसका कोई पर्पस नहीं. बिकॉज बिफोर वी कम टू दी ऑफेंसेज एंड डील विद ऑल ऑफ देम, आपको बस बेसिकली ये समझना है कि कहाँ पे किस चीज़ को कैसे इंटरप्रेट करना है. तो वहाँ पे पनिशमेंट का थोड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है. अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थोड़ी सेंटेंसिंग गाइडलाइंस बता दी, थोड़ा मैंने ये आपको बता दिया कि सेंटेंसिंग गाइडलाइंस में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. अब इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट केस मटेरियल हैं, उसमें आप केस ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेड थ्रू पुलिस स्टेशन लोधी कॉलोनी वर्सेस संजीव नंदा का केस है एक, जिसमें कम्युनिटी सर्विस फॉर अवॉइडिंग जेल सेंटेंस को भी रिकॉग्नाइज़ किया था और अलाउ भी किया था सुप्रीम कोर्ट ने. दूसरा एक जनरल गाइडलाइन आप ध्यान रखिए, दैट इज़ द केस ऑफ बिक्रम दौरजी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें बोला गया था कि सेंटेंसिंग पॉलिसी को, जब भी कोर्ट किसी को सेंटेंस देता है तो उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस सेंटेंस का सोशियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा. अगर ग्रेव क्राइम है विच इन्वॉल्व्स डकैती, किडनैपिंग, करप्शन, ट्रीजन, तो एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देना चाहिए, माइनर पनिशमेंट्स नहीं देने चाहिए ऐसे केसेस में. तो आपको बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है, अपार्ट फ्रॉम सम बेयर रीडिंग ऑफ द सेक्शन. इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं ध्यान रखना. ऑलराइट, neither I'll give you any separate assignments regarding the sentencing policy, because from the point of view of the exams or from the general point of view also, it is not that much important. But every provision of law in a certain sense is very important if you want to understand the law in its entirety. That is why I am covering it. तो आपको बस ये करना है कि लेक्चर्स समझने हैं, स्टडी नोट्स की एक बार रीडिंग करनी है इस चैप्टर की स्पेसिफिकली. बाकी कई चैप्टर्स की तो आपको शायद बार बार रीडिंग करनी पड़े, लेकिन इन चैप्टर्स की आप एक बार रीडिंग करिए एंड जस्ट बी डन विद इट एंड मूव ऑन. इस पे बहुत ज़्यादा ड्वेल करने की ज़रूरत नहीं है. आई थिंक आई विल टेक जस्ट टुडे एंड टुमारो फॉर, आई थिंक इट विल टेक ओनली 2 lectures to finish the entire chapter of punishment under IPC. So we'll begin विथ सेक्शन 57. अब सेक्शन 57 पे मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था कि ये फ्रैक्शंस के लिए यूज़ होता है सेक्शन 57. ये मान लीजिए कोई सब्सटैंशिव सेंटेंस है जिसका अटेम्प्ट सेपरेटली अलग से डिफाइंड नहीं है. द अटेम्प्ट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड सेपरेटली बाय द लेजिस्लेचर, एंड फॉर द पर्पस ऑफ आर इलस्ट्रेशन लेट अस इमेजिन द ऑफेंस वी आर टॉकिंग अबाउट is section 376 subsection 1, attempt to commit rape, simpliciter. अब उसमें maximum imprisonment for life. The maximum sentence that can be given under section 376 subsection 1 is imprisonment for life. तो जब कोई attempt करता है उसका attempt to rape, तो क्या ऐसे केस में जब आपको imprisonment of
ऑफ लाइफ का आधा देना है तो आप कैसे देंगे? जब आई एम टॉकिंग अबाउट हाफ ऑफ इट, अब मैं आपको सेक्शन 57 का कैलकुलेशन बताऊंगा। लास्ट टाइम तो मैंने इन सारी चीज़ों से डील कर दिया कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही होता है, और उसके बियॉन्ड आप ये नहीं मान सकते कि वो 20 साल का पीरियड है या 14 साल का पीरियड है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इस पर केस लॉज बहुत यूनानिमस हैं। प्रिजन रूल्स या कम्यूटेशन रूल्स या रेमिशन रूल्स में क्या लिखा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की डेफिनेशन नहीं होती, वो उनके पर्पस के लिए रेलेवेंट होते हैं। तो याद रखिएगा, जो रेशियो है ना गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और लक्ष्मण नस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें कैटेगोरिकली बोला गया है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स ordinarily means imprisonment for the whole of the remaining period of the convicted person's natural life। और फिर उसमें आगे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रिजन रूल में हो सकता है कि 20 साल बाद अगर उसका कंडक्ट बड़ा अच्छा रहे तो वो रिमिशन पे छोड़ा जा सकता है, कम्यूटेशन पे छोड़ा जा सकता है, वो इररिलेवेंट बात है। लेकिन ये कहना कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट 20 साल का टर्म होता है, ये एकदम ही गलत होगा। ऑलराइट, सो वी कैन नॉट कन्फ्यूज the benefit of remission or commutation with the definition of imprisonment for life। imprisonment for life की general definition है imprisonment for a person's ordinary natural life। तो कभी भी अगर सवाल है कि what is the definition of imprisonment for life, वो या प्रीलिम्स में आ जाए और उसमें सिंपली ये लिखा है ordinary natural life imprisonment for a period of 20 years 14 years और 10 years, तो आपको पहला ऑप्शन चूज करना है, ना कि अ पीरियड ऑफ 14 और 20 ईयर्स। ओनली फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फ्रैक्शंस यू विल resort to section 57 and construe it as a period of 20 years। So now I will be explaining to you that how to go about it, calculate कैसे करना है, कि इसको आप calculate कैसे करेंगे practically। तो now I will give you a practical example। अब सेक्शन 376 में अगर कोई कन्विक्ट होता है तो आप जानते हैं कि उसमें जो सेंटेंस पास हो सकता है वो मिनिमम 10 साल का होगा, पर वो एक्सटेंड हो सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने अटेम्प्ट टू रेप किया है तो उस पर कितनी सज़ा हो सकती है? देखिए, अटेम्प्ट एक्सप्रेसली तो बताया नहीं गया, लेजिस्लेचर ने तो कहीं बताया नहीं कि अटेम्प्ट को आप एक्सप्रेसली कैसे डील करेंगे, अलग से कैसे डील करेंगे। तो आप इसको 511 से रीड करेंगे। 511 कहता है कि जहाँ पे एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया गया है, अ पर्सन, आप उसमें 1/2 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी दे सकते हैं अगर वो इंक्लूडेड पनिशमेंट है तो, वरना आप आधा लॉन्गेस्ट टर्म जो प्रोवाइड किया गया है उसका आप आधा दे सकते हैं। तो या तो आप इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ का 1/2 दे दीजिए अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया गया है, या तो आप लॉन्गेस्ट टर्म फॉर द इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड दिया गया है उसका आधा दे दीजिए। तो देखिए, लॉन्गेस्ट टर्म को तो कैलकुलेट करना आसान है, 10 साल दिया गया है, लॉन्गेस्ट मान लीजिए किसी ऑफेंस में आपने उसको 511 से रीड किया, अटेम्प्ट के पर्पस के लिए कैलकुलेट किया कि अच्छा ये सिर्फ अटेम्प्ट हुआ था, ये कमिट नहीं हो पाया था पूरी तरीके से, तो आपके लिए बहुत आसान है इस कंक्लूजन पे आना कि इस पर 5 साल की सज़ा देनी चाहिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम। लेकिन जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ आता है वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है कि इस ऐसे केस में क्या करें। तो सिचुएशन आपके लिए आईपीसी ने बहुत आसान बना दी है। आईपीसी में आपको बेसिकली बस फ्रैक्शन का ध्यान रखना है कि जब आपको फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं उसके, मतलब मान लीजिए आपको आधा टर्म ही कैलकुलेट करना है, तो आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 20 साल का पीरियड मानेंगे ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के पर्पस के लिए, उसके बियॉन्ड नहीं। ये डेफिनेशन नहीं है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, सिर्फ कैलकुलेशन के पर्पस के लिए ये यूज़ होगा। तो आप सिंपली ऐसा कर सकते हैं, 511 रेड विथ 376 सबसेक्शन 1 रेड विथ सेक्शन 57। तो आपने लाइफ इम्प्रिजनमेंट को माना 20 साल का पीरियड, 20 साल का फ्रैक्शन कैलकुलेट किया, हाफ आधा किया उसको, तो कितना हो गया? 10 साल। ऑलराइट, तो आप इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि 376 में जो मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जा सकता है वो सबसेक्शन 1 उसके अटेम्प्ट के लिए, 376 के सबसेक्शन 1 में मैक्सिमम पनिशमेंट जो दिया जा सकता है उसके अटेम्प्ट के लिए वो दिया जा सकता है 10 साल का। ऑलराइट, क्योंकि आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट का फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हो। 57 क्या कहता है? सेक्शन 57, इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस ऑफ द टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for
20 ईयर्स। तो जब भी आप फ्रैक्शंस कैलकुलेट करना चाहते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट के, तो आप इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को मानेंगे अ सेंटेंस फॉर 20 ईयर्स। ये सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए लेजिस्लेचर ने आसान करके रखा है, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की डेफिनेशन नहीं देना चाहता था। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, सेक्शन 57 को पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब है 20 साल की सज़ा। कुछ लोग प्रिजन रूल्स पढ़ते हैं, वो सोचते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब है 20 साल मैक्सिमम। कुछ लोग CRPC का 433 पढ़ते हैं, वो सोचते हैं कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब 14 साल है। द आंसर इज नन ऑफ द अबव। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब है ऑर्डिनरी नेचुरल लाइफ ऑफ अ कन्विक्टेड पर्सन, ये मतलब है। ऑलराइट, यू कैन ऑलवेज साइट द केस ऑफ गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बहुत कैटेगोरिकली हेल्ड की गई थी ये बात, और बहुत ऑथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट है जो अभी तक फील्ड होल्ड की है। It was reiterated time and again in Lakshman Naskar life convict versus state of West Bengal also, और सुप्रीम कोर्ट इस डेफिनेशन पे यूनानिमस है। कोई भी डिसीजन ने इसके अगेंस्ट, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के चाहे माइनर या मेजर बेंच ने इस जजमेंट के अगेंस्ट रूल नहीं किया, क्योंकि अक्सर क्रॉस जजमेंट्स होते हैं जो कन्फ्लिक्टिंग होते हैं, वो पर इंक्यूरियम दिए जाते हैं, वो कोई लॉ, वो बैड लॉ ले डाउन करते हैं और वो फॉलो नहीं होते। लेकिन ये वो केस है जहाँ पे ये भी नहीं माना गया कि इससे कोई डेविएशन हो सकता है। गोपाल विनायक गोडसे में जो इस पॉइंट से डील करता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ ऑर्डिनरली मीन्स इम्प्रिजनमेंट फॉर द होल ऑफ द रिमेनिंग पीरियड फॉर द कन्विक्टेड पर्सनस नेचुरल लाइफ। तो बस इतना याद रखिएगा कि सिर्फ कैलकुलेशन के पर्पज़ के लिए आप 57 यूज़ करते हैं। ऑलराइट, तो 57 में कैलकुलेशन के पर्पज़ के लिए आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 20 साल मानेंगे। जब आपको मान लीजिए अटैम्प्ट कैलकुलेट करना है, तो 376 के सबसेक्शन 1 का ऑफेंस है, उसका अटैम्प्ट हुआ है, अटैम्प्ट टू रेप सिंप्लिसिटर। तो ऐसे केस में अटैम्प्ट टू रेप सिंप्लिसिटर में आप सिंपली क्या करेंगे, उसको 511 से रीड करेंगे, आप फिर उसको सेक्शन 57 से रीड करेंगे, क्योंकि आपको तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का आधा देना है ना, हाफ देना है ना उसका। तो अगर आपको हाफ देना है उसका, तो यू विल सिंपली इमेजिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट एज 20 ईयर्स, उसका हाफ करेंगे, यू विल कम टू अ कंक्लूजन दैट इज़ 10 ईयर्स। तो आप अटेम्प्ट टू रेप में 10 साल तक की सज़ा दे सकते हैं एज अ जज। ऑलराइट, बस इतना ध्यान रखिएगा, यही एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए, नथिंग एल्स। ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन द लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज रेकन्ड एज अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स ओनली इन सेक्शन 57। ऑलराइट, उसको ये मत समझ लीजिएगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब 20 ईयर्स है। ऑलराइट, बी वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट, क्योंकि मैं इसको बार बार रीइटरेट इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो इस पॉइंट को लेके। देयर शुड बी जीरो कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस पॉइंट। ऑलराइट, सो वी कैन कंटिन्यू बियॉन्ड दैट नाउ। सेक्शन 60 सेज सेंटेंस में बी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट वोनली और पार्टली रिगरस और सिंपल। अब इसकी एसेंस मैं मार्क करवा देता हूँ कहाँ पर है। इन एवरी केस इन विच द ऑफेंडर इज पनिश विद इम्प्रिजनमेंट विच मे बी ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन। तो ये जब यहाँ पे कॉमा से पहले की जितनी लाइनें मार्क कर लीजिए, तो आप ये समझ जाएंगे कि इसका स्कोप क्या है। ये सेक्शन की ओपनिंग लाइन ही बता देती है कि जहाँ पे भी लेजिस्लेचर बताता है कि एन ऑफेंडर इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच मे बी ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन। IPC में बहुत ऑफेंसेज हैं जो बताते हैं कि द सेंटेंस में बी ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन। आइदर डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है? इट कैन बी रिगरस और सिंपल। ऑलराइट, विल कम टू दैट, बट इसको मार्क कर लीजिए, फर्स्ट लाइन को मार्क कर लीजिए। विल डिस्कस अबाउट इट द मोमेंट वी आर डन विद सेक्शन। मैं रीडिंग इसकी एक बार कंप्लीट कर लूँ। सो इट शैल बी कंप्यूटेड टू द कोर्ट विद सेंटेंसेस सच ऑफेंडर टू डायरेक्ट इन द सेंटेंस दैट सच इम्प्रिजनमेंट शैल बी wholly rigorous, or that such imprisonment shall be wholly simple, or that any part of the imprisonment shall be rigorous and the rest simple. तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि इसका इफेक्ट क्या होता है, फिर मैं आपको इसके स्कोप की बात करूँगा। आपको एक इलस्ट्रेशन दूंगा, उसमें आई थिंक इट शुड बी वेरी क्लियर कि देखिए, ये बता रहा है कि जहाँ पे भी लेजिस्लेचर ने ऑफेंस में ये लिखा है कि इम्प्रिजनमेंट कोर्ट आइदर डिस्क्रिप्शन का दे सकता है, आइदर विद और विदाउट फाइन, तो ये कोर्ट के पास डिस्क्रेशन है कि वो चाहे रिग्रेस दे दे उस केस में,
पूरा का पूरा सेंटेंस, चाहे वो सिंपल दे दे उस केस में पूरा का पूरा सेंटेंस, या वो ये भी कर सकता है कि मैं आधा सेंटेंस रिग्रेस देता हूँ, मैं आधा सेंटेंस सिंपल देता हूँ, और या वो ये भी कर सकता है कि मैं 1/4 रिग्रेस दूंगा और रेस्ट में सिंपल दूंगा, या वाइस वर्सा. दैट इज अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट. और ध्यान रहे, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट इज ऑलवेज अ जुडिशियल डिस्क्रिप्शन. इट इज़ नॉट कैप्रिशियस और आर्बिट्रेरी और बेस्ड ऑन whims एंड फैंसी. इट इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड लॉजिक. तो अब मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूँ ये बताने के लिए कि आईपीसी में किन किन तरह के ऑफेंस हैं. वैसे तो आपको पूरी आईपीसी में ऐसे ऑफेंस मिल जाएंगे, लेकिन एक इलस्ट्रेशन देख के आई थिंक द पोजीशन शुड बी क्लियर टू यू. अब सेक्शन 166A को देखिए, पब्लिक सर्वेंट डिसअबोइंग डायरेक्शन अंडर लॉ. अभी उसकी नुआंसेस की बात हमें नहीं करनी, हमें बस उसकी ये बात करनी है कि उसमें सेंटेंस क्या दिया गया है, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सेक्शन 60 ना, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट सेक्शन, इसीलिए वी आर नॉट गोइंग टू इट्स नुआंसेस राइट नाउ. सो 166A में क्या बोला गया है कि शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 months. ठीक है, तो एक सिचुएशन आपको समझ में आ गई. फिर आप सेक्शन 167 पे आइए, पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग एन इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विद एन इंटेंट टू कॉज इंजरी. पब्लिक सर्वेंट एक इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट बना रहा है विद एन इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन, चाहे उसको पता हो, वो जब वो जानबूझ के ऐसा करता है विद इन इंटेंशन और नॉलेज कि वो किसी को इंजरी कॉज करेगा बाय फ्रेमिंग दैट इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट. तो उस केस में जो पनिशमेंट दिया गया है वो है पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन. यहाँ पे देखिए आइदर डिस्क्रिप्शन शब्द का यूज़ हुआ है. ऑलराइट, ये वही आइदर डिस्क्रिप्शन है जिसकी बात हो रही है सेक्शन 60 में. दैट इज द सेम आइदर डिस्क्रिप्शन. नाउ कम टू सेक्शन 169. हम जब तीनों सेक्शंस का सेंटेंस आपस में कंपेयर करेंगे ना, तो पूरी सिचुएशन हम लोग को क्लियर हो जाएगी. या कम टू सेक्शन 168 बस स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा. पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली इंगेजिंग इन ट्रेड. अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को प्रोहिबिट है ट्रेड करना और वो अनलॉफुली ट्रेड करता है तो वो 168 में पनिश्ड होगा. तो 168 क्या कहता है, पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 year और फाइन और विद बोथ. तो जब आप तीनों सेक्शन के इम्प्रिजनमेंट और सेंटेंसेस साथ में कंपेयर करते हो तो आप एक कंक्लूजन पे आते हो. 166A में रिग्रेस दिया गया है, 167 में आइदर डिस्क्रिप्शन दिया गया है और 168 में सिंपल दिया गया है. तो जहां पे रिग्रेस और सिंपल दिया गया है वहां तो कोर्ट्स के पास कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है. द कोर्ट विल हैव टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ रिटन बाय द लेजिस्लेचर. वहां पे रिग्रेस बोला है लेजिस्लेचर ने, तो कोर्ट को रिग्रेस देना पड़ेगा. कोर्ट के पास ये डिस्क्रिप्शन नहीं कि उसे सिंपल बना दें. ऑलराइट, अगर मान लीजिए इस पे मैक्सिमम सज़ा 166A पे कितने साल की हो सकती है, 2 साल की. तो अगर 2 साल की हो सकती है तो जो सेंटेंस देना होगा उसको कोर्ट को, वो 2 साल के अंदर मान लीजिए 6 महीने का सेंटेंस देता है या 8 महीने का देता है, वो सारा का सारा जो पीरियड ऑफ सेंटेंस होगा वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगा. रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मतलब हार्ड लेबर होगा, हार्ड लेबर में इंडल्ज होना होगा. ऐसे कन्विक्ट को वहाँ पे कारपेंट्री का काम और वो पिक्चर्स में दिखाते हैं ना, चक्की पीस रहे हैं और ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी. दैट इज़ द वर्क ऑफ हार्ड लेबर. अब हार्ड लेबर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सिर्फ यही चीज़ें नहीं आती हैं, कई कंस्ट्रक्टिव वर्क भी होते हैं और उस पर वेजेस भी मिलती हैं, लेकिन हार्ड लेबर होता है. सो रिगरस इम्प्रिजनमेंट में जहाँ लेजिस्लेचर ने बोल दिया है वहाँ पे कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं. Wherever the legislature has described simple imprisonment also, then again the court has no discretion. वो जो भी सेंटेंस जितने भी टर्म का देगा, the nature of sentence will be simple only. सिंपल इम्प्रिजनमेंट में हार्ड लेबर नहीं करना पड़ता. ऑलराइट, हार्ड लेबर मैंडेटरी नहीं होता वहाँ पे, वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है. तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट में देयर इज़ नो हार्ड लेबर इन्वॉल्व. रिगरस में हार्ड लेबर इज इन्वॉल्व. तो wherever the legislature has described that the nature of sentence shall be this, either rigorous or simple, अगर लिख दिया है कि rigorous होगा या simple होगा, तो ऐसे केस में तो कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है.
पर सेक्शन 60 ये कह रहा है कि जहां पे भी लेजिस्लेचर ने बोला है कि द सेंटेंस में बी ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, तो आइदर डिस्क्रिप्शन इज द की वर्ड सेक्शन 60 का, जहां पे सेंटेंस में बी ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, वहां पे इट इज वेरी ओपन टू योर कोर्ट्स to either sentence him for rigorous imprisonment while granting that sentence, or may sentence him for simple imprisonment, or partly rigorous or partly simple. All right, तो ये कोर्स उसके पास ओपन है, कोर्ट के पास. और ध्यान रहे, रिगरस और सिंपल इम्प्रिजनमेंट नेचर ऑफ द इम्प्रिजनमेंट की बात करता है. जो टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट है वो आपका ईयर्स में होता है. द टर्म इज इन ईयर्स, द नेचर इज रिगरस सिंपल. ऑलराइट, इस बात का ध्यान रखिएगा. तो टर्मिनोलॉजीज अलग हैं. तो जब अगर मान लीजिए कोर्ट किसी मान लीजिए पुलिस ऑफिसर को 167 में कन्विक्ट करता है, तो जब 167 में कन्विक्ट करेगा तो कोर्ट के पास ये ऑप्शन है कि वो कोई भी नेचर ऑफ सेंटेंस दे दे, चाहे वो रिगरस दे चाहे वो सिंपल दे. अब मैक्सिमम सज़ा 167 में है 3 साल की, तो 3 साल में पर वो नेचर जो भी चाहे दे सकता है, चाहे वो रिगरस दे या सिंपल दे. तो वो ऐसा भी कर सकता है कि मान लीजिए वो कहे कि पहले के 6 महीने रिगरस रहेगा और बाकी का पीरियड, मान लीजिए पूरे 3 साल की सज़ा देता है पुलिस ऑफिसर को, तो कहेगा कि बाकी की जितनी भी सज़ा बचती है वो सिंपल होगी. या वो ये कह सकता है पहले के 6 महीने सिंपल होगा और बाकी का रिगरस होगा. या वो ये भी कह सकता है कि पूरा का पूरा रिगरस होगा. या वो ये भी कह सकता है कि पूरा का पूरा पीरियड जो टर्म है सेंटेंस का वो सिंपल होगा. सो दैट इज द ऑप्शन अवेलेबल विद कोर्ट. ठीक है, दैट इज द ओनली स्कोप ऑफ सेक्शन 60. फिर एक सिचुएशन आती है कि इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ को आप क्या बोलेंगे, क्या उस पर सेक्शन 60 अप्लाई करता है? द आंसर इज नो. सेक्शन 60 उन सिचुएशन पे अप्लाई करेगा वेयर लेजिस्लेचर हैज यूज द टर्मिनोलॉजी दैट अ सेंटेंस कैन बी फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन. इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का हमेशा कंस्ट्रक्शन होता है रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. ये मुन्ना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बहुत कैटेगोरिकली हेल्ड कर दिया गया था आफ्टर रेफरिंग टू द कैटेना ऑफ डिसीजन राइट फ्रॉम द प्राइवी काउंसिल टू द ओल्डर डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. Mohammed Munna versus Union of India, it was decided on 16 September 2005. Very categorically the court ने स्कोप देखा सेक्शन 60 का, इस कंक्लूजन पे है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे ये नहीं अप्लाई करता. वो सीधे बोलता है कि एज रिगार्ड्स टू द पोजीशन ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट इट इज़ अ सेटल्ड लॉ दैट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हैज़ टू बी इक्वेटेड टू रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. लाइफ इम्प्रिजनमेंट पूरी लाइफ भर जितने टाइम भी कन्विक्ट जेल में है हार्ड लेबर है. ऑलराइट, सो I think that this situation should be very clear to you. Then we'll move on to the next section. That is section 63. Amount of fine. Where no sum is expressed to which a fine may extend, the amount of fine which the offender is liable is unlimited, but it shall not be excessive. अब IPC में आपने बहुत प्रोविजन अभी आप ऐसे पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग ने सब्सटेंशियल ऑफेंस से मेजॉरिटी में डील भी नहीं किया है. हमने तो अभी वेकेरियस लाइबिलिटी और छोटी छोटी चीज़ों से अभी डील कर रहे हैं. अभी मेजर बिग गन्स ऑफ द आईपीसी तो आने बाकी हैं. तो देखिए आईपीसी में बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जो बताते हैं कि फ़ाइन का जो अमाउंट है कितना होगा. कभी 500, जैसे अफरे में आपने देखा 100 रुपये है. ऑलराइट, 100 रुपये फ़ाइन है. आई होप यू रिमेंबर कि अफरे सेक्शन 159 ऑफ द आईपीसी में था. व्हेन वी वर डीलिंग विद सेक्शन of vicarious liabilities we also talked briefly about it. तो 100 रुपये फ़ाइन है, तो लेजिस्लेचर ने अमाउंट ऑफ फ़ाइन बता दिया है कि अमाउंट क्या होगा. तो उसमें कोई दिमाग लगाने वाला सीन नहीं है. लेकिन जहाँ पे लेजिस्लेचर ने सिर्फ बोला है मे बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन एंड फाइन, सॉरी, या और फाइन लिखा है इम्प्रिजनमेंट और फाइन, पर अमाउंट नहीं बताया लेजिस्लेचर ने. कई सेंटेंसेस ऐसे हैं आईपीसी में वेयर द लेजिस्लेचर हैज़ यूज्ड द एक्सप्रेशन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन. कई एक्सप्रेशन ऐसे हैं जो लेजिस्लेचर ने यूज़ किए हैं इम्प्रिजनमेंट और फाइन. तो इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन का मतलब है कि इम्प्रिजनमेंट के साथ तो फाइन देना मैंडेट है कोर्ट पे. इम्प्रिजनमेंट और फाइन का मतलब है कि कोर्ट चाहे तो इम्प्रिजनमेंट दे दे या फाइन दे दे, और फिर उसके साथ एक और लाइन जुड़ी होती है इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ भी जुड़ा होता है. तो ये चाहे तो वो दोनों ही दे दे, दैट इज़ ओपन टू द कोर्ट. तो क्योंकि इन दोनों ही केसेस में फ़ाइन का अमाउंट नहीं बताया गया है,
तो कितने अमाउंट ऑफ फाइन देंगे आप? तो ऐसे में लेजिस्लेचर ने बोल दिया है कि द अमाउंट ऑफ फाइन वुड बी अनलिमिटेड, वुड बी कंस्ट्रूड कि आप अनलिमिटेड फाइन दे सकते हो, बट वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कि क्या एक्सेसिव है क्या नहीं? ये फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस का सवाल है। ये फैक्ट टू ये हर केस के उसके यूनिक फैक्ट्स के बेसिस पे देखा जाएगा। अब इमेजिन करिए कि एक आदमी ने दूसरे आदमी का मर्डर कर दिया, ऑलराइट, ही कम्स फ्रॉम अ वेरी पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ही इज़ अफ्लिक्टेड बाय पॉवर्टी। अब ऐसे में मान लीजिए मर्डर का कन्विक्शन कर रहा है और फाइन लगाता है कोर्ट, तो ऐसी सिचुएशन में अगर मान लीजिए उसने फाइन लगा दिया 10 करोड़ का, तो आप ये सिचुएशन इमेजिन करिए कि वो आदमी इतना पुअर है, अगर मान लीजिए उसको आज से 20 या 25 साल बाद उसके गुड कंडक्ट को देखते हुए गवर्नमेंट छोड़ भी दे, तो ज़िंदगी भर तो वो 10 करोड़ का फ़ाइन ही पे करता रह जाएगा। या अगर मान लीजिए वो ज़िंदगी भर जेल में ही रहता है, तो 10 करोड़ कहाँ से रिकवर करेगा? अगर उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी बेच भी दे कोर्ट, तब भी 10 करोड़ का अमाउंट रिकवर नहीं हो सकता। और फिर ये भी तो सोचना चाहिए कि अगर मान लीजिए जिस आदमी ने मर्डर किया है उसकी जो फैमिली है वो हो सकता है उसी के घर में रिसाइड कर रही हो, तो क्या, और फाइन की रिकवरी के लिए आप जानते हैं कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी बेची जा सकती है, तो क्या ऐसे सिचुएशन में ये एक्सेसिव और अनड्यूली हार्श नहीं होगा? आपको नहीं लगता कि अनड्यूली हार्श होगा ऐसा? The answer is कि it would be unduly harsh and it would also be excessive, क्योंकि ये फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस को इग्नोर करते हुए किया गया है। देखिए, जब कोर्ट कोई डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करता है, जुडिशियल डिस्क्रेशन जो उसको लेजिस्लेचर ने दिया है, तो इट कैन नेवर बी बेस्ड ऑन विम्स और फैंसीज, और इट कैन नेवर बी कैप्रीशियस और आर्बिट्रेरी। ये नहीं हो सकता बिल्कुल भी कि मनमाने पने में दे दिया कि हाँ मुझे सही लग रहा था तो मैंने कर दिया। दिस विल नॉट गो इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ऐसे नहीं चलता कोर्ट्स में। द कोर्ट्स डिसीजन हैज़ टू बी रीजनेबल, ऑलवेज रीजनेबल, एंड इट शुड ऑलवेज बी लॉजिकल बेस्ड ऑन फैक्ट्स। वो मनमाना पना वहाँ पे नहीं चल सकता कोर्ट्स का। तो कोर्ट्स रीज़न भले ही कितने छोटे हों, लेकिन रीज़न ज़रूर होंगे। तो लेजिस्लेचर ने सिर्फ एक राइडर कोर्ट्स पे लगाया है कि जहाँ पे लेजिस्लेचर कह रहा है कि जहाँ पे मैंने नहीं डिसाइड किया है कि फ़ाइन का अमाउंट कितना होगा, वहाँ पे जुडिशरी अनलिमिटेड फ़ाइन लगा सकती है, अनलिमिटेड, पर अमाउंट ऑफ फाइन एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। अब वहीं पे मान लीजिए कोई बहुत रिच बिजनेसमैन है जिसने मर्डर किया, जिसका हज़ारों करोड़ों का एम्पायर है, तब कोर्ट बड़े आराम से 10 करोड़ का फ़ाइन लगा सकता है। वो कहेगा कि आपने एक पर्सन की जान ले ली, तो एडुकेट कंपनसेशन देने के लिए आप इन पे मैं 10 करोड़ का फ़ाइन लगाता हूँ। मर्डर पे 10 करोड़ का फ़ाइन लगाया, 10 करोड़ के फ़ाइन में से हो सकता है 8 करोड़ या पूरा का पूरा 10 करोड़ भी वो फैमिली को एज अ कंपनसेशन दे दे बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 357 ऑफ द CRPC। ऐसा भी कर सकता है कोर्ट अगर उसे सही लगे तो। लेकिन ये हर केस में थोड़ी ना होगा। हर आदमी तो बहुत रिच बिजनेसमैन नहीं होता। ज़्यादातर जो लोग कन्विक्ट होते हैं या ज़्यादातर जो लोग पाए गए हैं कि इन सब ऑफेंसेस में लिप्त होते हैं, जनरली वो मिडिल क्लास या पूरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आते हैं। रिच बहुत ही कम कन्विक्ट होते हैं इन अ गिवन सिचुएशन। तो ऐसे आप हर केस में इतना फाइन नहीं लगा सकते। आप हर केस को एक ही स्टैंडर्ड से जज नहीं करते। वही लेजिस्लेचर कह रहा है। फैक्ट्स देखिए, फैक्ट्स में अगर आपको सही लगता है कि दे सकते हैं तो दे दीजिए, तो पर एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। आप एक्सेसिव वर्ड को हमेशा कंस्ट्रू करेंगे हर उस केस के यूनिक फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। ये जो वर्ड है ना, इसका एप्लीकेशन केस टू केस बेसिस पे चेंज होगा। ऑलराइट, तो इसका कोई सेट कट एंड राइट फार्मूला नहीं है। इट हैज़ टू बी कंस्ट्रूड इन अकॉर्डेंस विद द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। सो मूविंग फर्दर, वी विल नाउ कम टू सेक्शन 63. Now section 63 says, 64 says, sentence of imprisonment for non-payment of fine. In every case, an offence punishable with imprisonment as well as fine, in which the offender is sentenced to fine whether with or without imprisonment, and in every case of an offence punishable with imprisonment or fine or with fine only, in which the offender is sentenced to fine, it shall be competent to the court to which sentences such offender to direct by the sentence that in default of payment of fine the offender shall suffer
imprisonment for a certain term in which the imprisonment shall be in excess of any other imprisonment to which he may have been sentenced or to which he may be liable under commutation of sentence. बेसिकली कोर्ट ये कह रहा है, लेजिस्लेचर ये कह रहा है कि जब भी कोर्ट किसी फाइन के अमाउंट लगा सकता है, मान लीजिए कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया गया है, फाइन भी दिया गया है साथ में, तो उस केसेस में इफ़ द कोर्ट कम्स टू अ कंक्लूजन कि फ़ाइन का डिफ़ॉल्ट हो सकता है, कि मान लीजिए फ़ाइन नहीं पे करे, तो कोर्ट ये भी कर दे कि एक एक्सेसिव सेंटेंस लगा दे, कि मान लीजिए 6 महीना एक्स्ट्रा लगा दे या 1 साल एक्स्ट्रा लगा दे, डिपेंडिंग ऑन दी सब्सटेंसिव सेंटेंस क्या दिया गया है मेन, और ये बोल दे कि अगर आपने फ़ाइन नहीं दिया तो आपको इतना पीरियड अपने ओरिजिनल सेंटेंस के एक्सपायरी करने के बाद भी भुगतना पड़ेगा। तो मान लीजिए कोर्ट ने 3 साल का सेंटेंस दिया और फ़ाइन के डिफ़ॉल्ट में एक्स्ट्रा 6 महीना लगा दिया कि अगर आपने फ़ाइन नहीं दिया, फ़ाइन आपका नहीं मिला विद इन दीज 3 years या रिकवर नहीं हो पाया, तो आपको 3 साल की एक्सपायरी के बाद भी 6 महीना और जेल में बैठना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ द सेंटेंस इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। तो ये उसी इफेक्ट की बात कर रहा है। अगर मान लीजिए वो फ़ाइन पहले दे देगा तो उसे एक्स्ट्रा 6 महीना जेल में नहीं रहना पड़ेगा। सिमिलरली सेक्शन 65 says limit to imprisonment for non-payment of fine when the imprisonment and fine are avoidable. The term to which the court directs the offender to be imprisonment in default of payment of fine shall not exceed 1/4 of the imprisonment, which is the maximum fixed for the offence if the offence is punishable with imprisonment as well as fine. तो अब सेक्शन 65 क्या कह रहा है कि जहाँ पे भी सेंटेंस उस ऑफेंस पे दिया गया है जहाँ पे लेजिस्लेचर कहता है कि जो लेजिस्लेचर एक ऐसा प्रोविज़न बनाता है जहाँ पे फाइन और जेल सेंटेंस दोनों दिया जा सकता है, तो ऐसे केस में, और सिर्फ उन्हीं केसेस पे ध्यान रखिएगा, इसका एप्लीकेशन बहुत लिमिटेड है, क्योंकि जब सेक्शन 67 पे आएंगे ना तो वील डील विद दो सिचुएशंस जो सिर्फ फाइन से पनिशेबल हैं, तो आपको इनमें डिस्टिंक्शन अभी से क्रिएट कर लेना है। सेक्शन 65 ये कह रहा है कि जहाँ पे जिन ऑफेंसेस पे इम्प्रिजनमेंट भी प्रोवाइडेड है और फाइन भी प्रोवाइडेड है, तो उन केसेस में कोर्ट चाहे तो जो मैक्सिमम दिया गया है उसका 1/4 ऐड कर दे, जो वो डिफ़ॉल्ट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के लिए ट्रीट करेगा, वो डिफ़ॉल्ट सेंटेंस के लिए ट्रीट करेगा जो फाइन ना देने की वजह से इम्पोज होता है। ठीक है, तो 65, 66 विल बी रेड विद सेक्शन 64, तो जिससे आपको टोटली आपको समझ में आ जाए कि इसका स्कोप क्या है। तो 1/4 के लिए मैं आपको एक थॉट एक्सरसाइज देता हूँ कि जैसे पनिशमेंट फॉर रॉबरी देखिए 392 में। अब पनिशमेंट फॉर रॉबरी में अगर मान लीजिए कि आप अभी उसका लैटर पार्ट इग्नोर कर दीजिए, जो हाईवे रॉबरी या सनसेट या सनराइज़ पे अभी डील करता है, जो 14 साल तक जा सकता है, हम 10 साल वाला एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा आसान होगा समझने में। तो 392 में whoever commits robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो इसमें फ़ाइन भी है और इसमें वो भी है, क्या कहते हैं, इम्प्रिजनमेंट। तो अब अगर मान लीजिए कोर्ट को एक डिफ़ॉल्ट का सेंटेंस बनाना है कि डिफ़ॉल्ट फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के लिए क्या सेंटेंस होगा, तो मान लीजिए कोर्ट ने इनको पूरे के पूरे 10 साल की सज़ा दे दी, मान लीजिए, तो कोर्ट ये भी कर सकता है कि जो डिफ़ॉल्ट का सेंटेंस बनाए इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 65 वो उसका 1/4 पीरियड रख दे। तो 1/4 पीरियड आपका रॉबरी 10 साल के पीरियड को लेके क्या होगा, वी हैव टू डिवाइड 10 into 4 equal divisible parts, that would come to be 2.5 years। तो कोर्ट ये कर सकता है कि एक एक्स्ट्रा सेंटेंस डाल दे 2.5 साल का फॉर द डिफ़ॉल्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फाइन।
तो जो नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के लिए वो इस मेन सेंटेंस पे जो 10 साल का मेन सेंटेंस दिया है उस पे भी एक एक्स्ट्रा सेंटेंस ऐड कर दे फॉर 2.5 ईयर्स, ये इसका स्कोप है। तो ये तो मैंने मैक्सिमम एग्जाम्पल लिया, लेकिन ध्यान रखिएगा इन सेक्शंस को CRPC के सेक्शन 29 और 31 से पढ़ा जाता है। तो अभी आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर बेसिकली इतना समझ लीजिए कि मान लीजिए अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ट्राई कर रहा है ऐसा ऑफेंस, क्योंकि CRPC की फर्स्ट शेड्यूल अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट शेड्यूल में आप पाएंगे कि मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इवन दो रॉबरी का केस ट्राई कर सकता है, पर जब आप उसको CRPC के सेक्शन 29 से पढ़ते हैं तो आप इस पोजीशन पे आएंगे कि जो आपका मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन वो 10,000 का लगा सकता है, और जो मैक्सिमम सेंटेंस दे सकता है वो 3 साल का दे सकता है एक गिवन ऑफेंस पे। ऑलराइट, सेक्शन 31 ये कहता है फिर कि आप एग्रीगेट पनिशमेंट एक केस में 7 साल से ज़्यादा का नहीं दे सकते, 14 साल से ज़्यादा का नहीं दे सकते, और जो भी आपकी पावर है, मान लीजिए मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास 3 साल का सेंटेंस दे सकता है, तो जो एग्रीगेट पनिशमेंट है वो ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट को एक्सीड नहीं करेगा जो वो एक सिंगल ऑफेंस में दे सकता है। तो यू कम टू द कंक्लूजन बाय रीडिंग सेक्शन 29 एंड 31 कि जो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो जो मैंने अभी इलस्ट्रेशन दिया उस हिसाब से वो एक्ट नहीं कर सकता। ये इलस्ट्रेशन जो मैंने अभी आपको दिया ये मैंने सेशंस जज को ध्यान में रख के किया है। सेशन जज ऐसा कर सकता है कि 10 साल का मैक्सिमम दिया, फिर 2.5 साल उसने 1/4 भी दे दिया, बट डोंट अज्यूम कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऐसा कर लेगा। तो हमेशा अपने एग्जाम्पल में ना, अगर आपको बहुत ही प्योरिटन रहना है तो इस एग्जाम्पल में कोर्ट ऑफ सेशन का यूज़ करिएगा, ना कि मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का, क्योंकि मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर्स लिमिटेड है। क्योंकि व्हेन यू रीड दिस प्रोविजन with section 29 and 31 you will come to that conclusion। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट शेड्यूल में मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्राई कर सकता है रॉबरी का केस, पर उसी जैसे कि मैंने इलस्ट्रेशन दिया उस हिसाब से वो सेंटेंस नहीं कर सकता। ये जो इलस्ट्रेशन मैंने दिया ये सेशन जज को ध्यान में रखते हुए किया है। सेशन जज ऐसा कर सकता है, नॉट द मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो मैंने क्लैरिफिकेशन अभी इसलिए दे दिया है जिससे कोई भी CRPC बैच का कंफ्यूज ना हो जाए। और IPC बैच डजंट नीड टू स्वेट अबाउट इट, ये बस एक ट्रिविया था जो उसको बताने के लिए था। अपार्ट फ्रॉम दैट दे डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ऑलराइट, नाउ वी कम टू सेक्शन 66। अब 66 कहता है डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन मे बी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन टू विच द ऑफेंडर माइट हैव बीन सेंटेंस्ड फॉर ऑफेंस। तो ये भी कोर्ट ने उसके ऊपर छोड़ दिया है, ये भी लेजिस्लेचर ने कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया है और ये बोल दिया है कि मान लीजिए अगर इम्प्रिजनमेंट है, रिग्रेस है, मान लीजिए ऑफेंस ने प्रिस्क्राइब किया रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, तो जो आप डिफ़ॉल्ट सेंटेंस नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के लिए बता रहे हैं वो रिग्रेस हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए जो सेंटेंस है वो सिंपल है, जो सब्सटैंशिव पोर्शन है, जो ओरिजिनल ऑफेंस है उसमें जो सेंटेंस है वो सिंपल ही हो सकता है, तो फिर जो नॉन पेमेंट ऑफ फाइन का जो सेंटेंस होगा उस केस में वो भी सिंपल होगा। अगर मान लीजिए जो ओरिजिनल ऑफेंस है वो बताता है कि आइडर डिस्क्रिप्शन पे जा सकता है, चाहे रिग्रेस कोड दे दे या सिंपल दे दे सेंटेंस, तो ऐसे केस में भी इट इज़ ओपन टू द कोर्ट टू अवॉर्ड आइदर रिग्रेस और सिंपल। ऑलराइट, यही सेक्शन 66 का एसेंस है, देयर इज नथिंग मोर इन इट। नाउ वी कम टू सेक्शन 67। अब सेक्शन 67 को मैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन द ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली। ये सिर्फ उन सिचुएशंस पे अप्लाई करेगा जहाँ पे कोई सेंटेंस फाइन ओनली से पनिशेबल है। देयर इज नथिंग एल्स बट फाइन ओनली, कि उसमें से फाइन है और कुछ नहीं है। इफ द ऑफेंस बी पनिशेबल विद फाइन ओनली, the imprisonment which the court imposes in default of payment of fine shall be simple, and the term which the court directs the offender to be imprisoned in default of payment of fine shall not exceed the following scale, that is to say, a term not exceeding 2 months when the offence of fine does not exceed 50 rupees, and the term not exceeding 4 months when the amount of fine exceeds 100 rupees, and for a term not exceeding 6 months in other case। मतलब मान लीजिए कि अगर ऑफेंस है, जो फाइन का अमाउंट है वो 50 रुपये के अंदर है, तो 2 महीना
100 रुपये के अंदर है तो 4 महीना, और 100 रुपये के ऊपर है तो 6 महीना। लेकिन ये किस पे अप्लाई करता है? सेक्शन 67 किस पे अप्लाई करता है? ये 64, 65, 66 की बात नहीं कर रहा है। ये सिर्फ उन ऑफेंसेस की बात कर रहा है जिसमें सिर्फ फाइन का अमाउंट लगता है, जिसमें सिर्फ फाइन से वो पनिशेबल है। ऑलराइट, ये सिर्फ उन ऑफेंसेस की बात कर रहा है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप उन केसेस में 6 महीने की सज़ा दे सकते हैं अगर मान लीजिए फ़ाइन का अमाउंट आपका 100 रुपये के ऊपर का है। ऑलराइट, ये प्रोविज़न उन केसेस पे अप्लाई ही नहीं करता है जहाँ पे फ़ाइन के साथ इम्प्रिजनमेंट जुड़ा है या और इम्प्रिजनमेंट का प्रोविज़न लगाया है लेजिस्लेचर ने। ये सिर्फ उन सिचुएशंस पे अप्लाई करता है जहाँ पे फ़ाइन ओनली, कोई इम्प्रिजनमेंट का प्रोविज़न नहीं है, उन्हीं सिचुएशंस पे अप्लाई करेगा। ऑलराइट, सो बी वेरी क्लियर अबाउट इट, क्योंकि मोस्ट पीपल आर कन्फ्यूज कि 1/4 अगर आप इमेजिन करेंगे तो हो सकता है वो 2.5 साल चला जाए, और अगर आप सेक्शन 67 पढ़ें तो उनको लगता है 6 महीना ही रहेगा। तो लोगों को ज़्यादातर सेक्शन समझ में नहीं आता, उनको लगता है मैक्सिमम हर सिचुएशन में 6 महीना होता है। अगर मैक्सिमम 6 महीना होता तो लेजिस्लेचर को 1/4 लिखने की क्या ज़रूरत पड़ती, क्या कहते हैं, अंडर सेक्शन 65 में कोई भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये कन्फ्यूजन क्यों अराइज होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 6 मंथ्स है मैक्सिमम या 1/4 है मैक्सिमम? वो कन्फ्यूजन इसलिए अराइज होता है क्योंकि 64 और 67 को सेपरेट करके नहीं देखा गया। सेक्शन 64, 65, 66 का अपना अलग स्फीयर है और सेक्शन 67 का अपना अलग स्फीयर है। सेक्शन 67 सिर्फ उन सिचुएशंस पे अप्लाई करेगा जहाँ पर ऑफेंस जो पनिशेबल है वो सिर्फ फाइन से पनिशेबल है, उसमें कोई भी इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन नहीं है किसी भी हाल में। वहाँ पे अगर फाइन नहीं दिया गया तो आप सब्सटेंसिव सेंटेंस किसका लगा सकते हैं? ये जो पीरियड दिया गया है ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 महीने का लगा सकते हैं अगर अमाउंट ऑफ फाइन 100 रुपये से ऊपर का है। मान लीजिए 200 रुपये है अमाउंट ऑफ फाइन, तो ऐसे केस में आप 6 महीना लगा सकते हैं। पर ध्यान रहिए, जो ऑपरेटिंग क्लॉज है, जो मेन एसेंस है सेक्शन 67 का, वो यही है कि जो मेन ऑफेंस है उसमें सिर्फ फाइन का पनिशमेंट होना चाहिए। वो कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखना चाहिए और इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 मंथ एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर दिस पीरियड, कोई भी लगा लीजिए आप पीरियड, वो उस पर सेक्शन 67 नहीं अप्लाई करता। सेक्शन 67 बस उन्हीं सिचुएशंस पे अप्लाई करेगा यहाँ पे ऑफेंसेस में सिर्फ फाइन का प्रोविज़न है, किसी भी तरीके से इम्प्रिजनमेंट का कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है। ऑलराइट, बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। Then we come to section 68, imprisonment to terminate on payment of fine. The imprisonment which is imposed in default of payment of fine shall terminate wherever the fine is paid or levied according to process of law. तो लेवी का मतलब है सीजर। इस सेंस में जो लेवी का यूज़ हुआ है वो सीजर के सेंस में हुआ है। ये मान लीजिए कि डिस्ट्रेस वारंट कोर्ट ने एग्जीक्यूट करवा दिया। डिस्ट्रेस वारंट क्या होता है? इट इज़ अ रिकवरी प्रोसीजर जिसमें फ़ाइन रिकवर करवाया जाता है। इट इज़ उसमें मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी आफ्टर गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ द कलेक्टर इन द केस ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टी सोल्ड करवाई जा सकती है, और फिर उससे जो फाइन के प्रोसीड्स हैं वो रिकवर करवाए जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर फाइन प्रोसेस ऑफ लॉ से लेवी हो चुका है या हो सकता है पे कर दिया हो कन्विक्ट पर्सन ने थ्रू एनी अदर मीन्स, तो ऐसे केस में जो डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन का जो सेंटेंस है वो टर्मिनेट तुरंत हो जाता है जहाँ पे फाइन का अमाउंट रिकवर हो चुका है। ऑलराइट, चाहे बाय प्रोसेस ऑफ लॉ से हुआ हो या कन्विक्ट की पेमेंट से हुआ हो। अब सेक्शन 69 कहता है टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ द प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन इफ बिफोर द expiration of the term of imprisonment fixed in the default of payment such a proportion of fine be paid or levied that the term of imprisonment suffered in default of payment of fine is not less than the proportional to the part of fine still unpaid, the imprisonment shall terminate. अब इसके लिए एक illustration दिया गया and I think the illustration will clear you the position itself. मैं आपको बड़ा सिंपल से illustration देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। Now imagine a situation, a person has been sentenced to a certain period of imprisonment, और let us suppose that जो default of fine का imprisonment है वो 6 महीने का है। डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन का जो imprisonment है वो 6 महीने का है। तो हम
हर 2 महीने के लिए 100 रुपये लगा लेते हैं। मान लीजिए जो सेंटेंस ऑफ फाइन पास किया गया है वो 300 रुपये का है, ऑलराइट। तो अब कन्विक्ट के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो 300 रुपये का फाइन दे, या तो वो 6 महीने का सेंटेंस फॉर डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन झेले, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन झेले। तो अब मान लीजिए उसने क्या किया कि 2 महीने जेल में गुजार लिए उस डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन के सेंटेंस के, 2 महीने जेल में गुजार लिए, बचे उसके 4 महीने। वो क्या करता है कि 300 की जगह 200 रुपये दे देता है। 300 की जगह उसने 200 रुपये दे दिए। तो ऐसे केस में जो उसका जो सेंटेंस है वो तुरंत टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि उसने जो प्रोपोर्शनल पार्ट है सेंटेंस का वो बिता लिया था। हमारे एग्जाम्पल के लिए हमने फाइन के अमाउंट को 300 रुपये माना, 6 महीने की इनको डिफ़ॉल्ट सेंटेंस दी फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अब उसने चूँकि 2 महीने ऑलरेडी गुजार लिए थे, तो 100 रुपये की जो पूरी वैल्यू थी उसका सेंटेंस उसने झेल लिया। अब बचे उसके 4 महीने और, करस्पॉन्डिंग टू 100 रुपीज़ ईच फॉर एवरी 2 मंथ। तो ऐसे केस में जहाँ उसने 400 रुपये दिए आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट अपडेट, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द इनिशियल 2 मंथ्स, उसका पूरा सेंटेंस देन एंड देयर ख़त्म हो जाएगा, ऑलराइट, क्योंकि उसने प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ सेंटेंस गुजारा और जो रेस्ट सेंटेंस बचा हुआ था उसका प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन दे दिया, ऑलराइट। सो आई होप दैट दिस इज़ क्लियर। इलस्ट्रेशन भी वही बताएगा इन इट्स ओन टर्मिनोलॉजी, you may read it. I'll just move on to the next section because the essence of the illustration I just gave and the essence of the illustration given by the legislature is the same. Now we come to section 60. अब ये थोड़ा पीरियड ऑफ लिमिटेशन की भी बात करता है और ये अबेटमेंट की प्रोसीडिंग की भी बात करता है। वो कहता है कि आपकी इफ़ अ पर्सन जो कन्विक्ट अगर वो मर भी जाए ना तो भी his property is not discharged from the liability of payment of fine. तो आई रीड यू द सेक्शन। इसका जो पहला पार्ट है वो लिमिटेशन की बात करता है। द फाइन और एनी पार्ट ऑफ विच रिमेन्स अनपेड मे बी लेविड एट एनी टाइम विद इन 6 years। रिकवर कराया जा सकता है पहले 6 साल में। तो ये 6 साल को मार्क कर लीजिए, ये प्रीलिम्स के पर्पज़ के लिए बहुत असेंशियल है। आफ्टर पासिंग ऑफ द सेंटेंस एंड इफ अंडर द सेंटेंस द ऑफेंडर इज लायबल टू पनिशमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 6 years, देन एनी टाइम प्रीवियस टू द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड। तो अगर मान लीजिए ऑफेंडर को सेंटेंस दिया गया 10 साल का, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन जिसमें फ़ाइन रिकवर करवाया जा सकता है वो 6 साल से बढ़ के 10 साल तक का हो जाएगा, मतलब जितने के लिए भी ऑफेंडर जेल में है फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 6 years। और अगर मान लीजिए उसको सिर्फ 3 साल की सज़ा मिली है तो आपका ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड चलेगा 6 साल का। और साथ में लेजिस्लेचर ने ये भी लिख दिया कि डेथ ऑफ द ऑफेंडर डज नॉट डिस्चार्ज द लाइबिलिटी, does not discharge from the liability of any property which would after his death be legally liable for his debts। तो आपने जयललिता के केस में भी यही देखा था। when she died, जो फाइन का सब्सटेंशियल अमाउंट था वो अबेट नहीं किया था, वो ख़त्म नहीं हुआ था, फाइन तब भी एप्लीकेबल रहा एंड इट वॉज रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली। तो ध्यान रखिएगा, डेथ विल नॉट डिस्चार्ज द लाइबिलिटी इवन आफ्टर डेथ। और लिमिटेशन पीरियड फॉर लेवी ऑफ फाइन क्या है? 6 years। और अगर ऑफेंडर 6 साल से ज़्यादा के लिए इम्प्रिजनमेंट में है तो फिर होगा उस पीरियड के लिए जितने पीरियड के लिए ऑफेंडर जेल में है। तो मतलब उसके सेंटेंस की एक्सपायरी से पहले आपको रिकवर लेवी करवा लेना है फाइन, ऑलराइट। दैट इज़ द ओनली थिंग that is contained under section 70. Now I come to section 71. वो कहता है limit of punishment of offense made up of several offense. When anything which is offense made up of parts, any of part is itself an offense, the offender shall not be punished with the punishment of more than one of such of his offense unless it is so expressly provided. Where anything is an offense falling within 2 or more separate definitions of law in force for the time being, by which the offences are defined or punished, or where several acts of which one or more than one would by itself or themselves constitute an offense, constitute when combined a different offense, the offender shall not be punished with more severe punishment than the court which tries him could award
फॉर सच ऑफेंसेस। सेक्शन 71 के पास एक शॉर्ट नोट लिख लीजिए कि इट इज़ ऑल्सो टू बी रेड विद सेक्शन 29 एंड सेक्शन 31 एंड सेक्शन 220 ऑफ द CRPC। ऑल राइट, एक शॉर्ट नोट बस यहाँ से लिख दीजिए कि इसका लिंक उन सेक्शंस में जाता है। सो आप अभी मैं आपको सेक्शन 71 समझाता हूँ। अब मान लीजिए जैसे एक हर्ट का प्रोविजन है, हर्ट पे मेजॉरिटी सज़ा 1 साल की हो सकती है मैक्सिमम। तो अगर एक आदमी किसी को 50 या 100 बार लाठी मारे तो हर एक लाठी का स्ट्रोक एक हर्ट का ऑफेंस क्रिएट कर रहा है। तो अगर मान लें कि 100 लाठी मारी उसने एक आदमी को, ही हैज़ इन्फ्लिक्टेड अ ब्लो विद अ स्टिक for 100 times in a row in a single transaction, can we now say that he has committed an offense of hurt for 100 times and hence every blow should be tried separately? तो अगर आप ये कंस्ट्रक्शन बनाते हैं कि every blow should be tried separately, तो अगर उसने 100 बार लाठी मारी तो हर लाठी में एक हर्ट हुई, और हर लाठी में अगर एक हर्ट हुई तो उसकी 1 साल की मैक्सिमम सज़ा हो सकती है। और अगर हर लाठी पे एक हर्ट हुई और उस पर 1 साल की मैक्सिमम सज़ा हो सकती है, तो आप 100 लाठियों के लिए उसे 100 साल की सज़ा दे सकते हैं। क्या ऐसा कंस्ट्रक्शन लॉ कहता है? यही इसी को क्योर करने के लिए सेक्शन 71 आता है। वो कहता है कि अगर आपने जहाँ एक ऑफेंसेस इज मेड अप ऑफ पार्ट्स और पार्ट खुद में ऑफेंस है और पार्ट इज एन ऑफेंस विद इन इटसेल्फ, तो इन दैट सिचुएशन आप उसको जो पनिशमेंट देंगे वो उन्हीं पनिशमेंट को कॉमेंसुरेट करेगा जो टोटैलिटी में कमिट हुआ है। आप उसको ऐसे नहीं कह सकते कि अब हर एक हर्ट अलग ट्रांजैक्शन है। वो सारा जितना ऑफेंस जो हमने लाठी वाला रजिस्ट्रेशन लिया ना, वो एक ही हर्ट माना जाएगा, वो एक ही हर्ट का केस होगा। ऑलराइट, या एक ही वो ग्रीवियस हर्ट का केस हो सकता है। उसको ऐसा नहीं माना जा सकता है कि एवरी सिंगल लाठी ब्लो वुड बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट केस ऑफ हर्ट। नहीं, वो 100 की 100 लाठी ब्लो विल बी कंसिडर्ड अंडर वन केस, और उस पर अगर मान लीजिए सिर्फ हर्ट का ही वो आएगा, हर्ट का ही चार्ज लगता है, तो आप उस पर मैक्सिमम 1 साल की सज़ा, 1 साल की सज़ा दे सकते हैं। आप ये नहीं करेंगे कि हर लाठी ब्लो को अलग ट्रांजैक्शन ले लिया और अलग ट्रांजैक्शन मान के आपने उनको 100 साल की सज़ा दे दी। दैट कैन नॉट बी डन। दैट इज़ द एसेंस ऑफ सेक्शन 71। अच्छा, इट इज़ वेरी इजी टू इमेजिन कि IPC ने ऐसा राइडर क्यों लगाया हुआ है, ऐसा रिस्ट्रेंट क्यों लगाया हुआ है। इसलिए क्योंकि इट इज़ थियोरेटिकली इम्पॉसिबल और प्रैक्टिकली ऑल्सो इम्पॉसिबल कि एक आदमी एक ही ऑफेंस कमिट कर पाए। अगर आप किसी एक आदमी पे केस पढ़ेंगे या के चार्जेस देखेंगे तो आप देखेंगे उसकी छोटी छोटी एक्ट ना IPC में अपने आप से एक अलग से ऑफेंस बना रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये हो सकता है कि मान लीजिए एक आदमी चीटिंग करना चाहता है। अब उस चीटिंग को अकम्प्लिश करने के लिए, उस 420 के चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए वो हो सकता है ऐसी एक्ट कर रहा हो उस सिंगल गोल को अचीव करने के लिए जिसमें हर सेपरेट एक्ट अपने अंदर ही चीटिंग है। वो हो सकता है एक बार कहे कि मान लीजिए प्रॉपर्टी आपसे लेना चाह रहा है, तो बताता है कि मैं पैसे आपको टाइम पे दे दूंगा। वो हर बार अलग अलग टाइम पे आपको फ़ोन कॉल करके रीअश्योरेंस देता है कि आई विल गिव यू मनी ऑन द राइट टाइम, और कम से कम 6-7 बार कॉल की। तो हर एक फॉल्स अश्योरेंस अपने में चीटिंग हो सकता है। ऑलराइट, या मान लीजिए वो आपसे प्रॉपर्टी लेना चाहता है कोई, तो ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए फॉल्स अश्योरेंस आपको दिखा रहा है, एक फॉल्स सर्टिफिकेट दिखा रहा है और सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है। तो एक चीटिंग के ट्रांजैक्शन में कई छोटे छोटे चीटिंग के ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो क्या आप सबको अलग अलग कैलकुलेट करके उसको पनिश कर दोगे? नहीं, आप उसको एक वोल ट्रांजैक्शन मानोगे जो एक पर्सन के खिलाफ हुआ है। हाँ, ये बात अलग है कि उस चीटिंग के गोल को अचीव करने के लिए अगर उसने अलग से फॉर्जरी का काम किया तो वो फॉर्जरी में पनिश हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन उस चीटिंग को अचीव करने के लिए उसने छोटे छोटे ऑफेंसेस और किए जो चीटिंग ही कहलाते हैं, तो आप उसको अलग से नहीं मानोगे, वो आप सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट मानोगे। ऑलराइट, इसमें ये देखा जाता है, ये एकदम सेम है लाठी ब्लो की तरह कि जिसने एक आदमी ने 100 बार स्टिक से मारा, 100 बार स्टिक से मारा, सिर्फ हर्ट हुई, मतलब कोई ग्रीवियस हर्ट भी नहीं बनी, उस आदमी को कोई ग्रीवियस हर्ट नहीं हुआ,
सिर्फ एक सिंपल केस ऑफ हर्ट हुआ। तो ऐसे में जब उसने 100 बार मारा तो एवरी सिंगल ब्लो इज अ हर्ट इन इटसेल्फ। सिमिलरली every single false assurance given by a cheater to the person deceived can also amount to cheating। तो क्या आप हर उस ट्रांजैक्शन को अलग अलग करके देखेंगे? नहीं, आप एक ट्रांजैक्शन को होलिस्टिकली देखेंगे और उस पर एक आप कन्विक्शन करेंगे। ऑलराइट, पर इसको ऐसे भी मत कंस्ट्रू कर लीजिएगा, क्योंकि सेक्शन 71 का दूसरा इलस्ट्रेशन ठीक दूसरी जगह इशारा करता है। आई विल ऑल्सो रीड यू दैट। इलस्ट्रेशन बी कहता है सेक्शन 71 का, वाइल ए इज बीटिंग जी, वाई इंटरफेयर्स एंड ए इंटेंशनली स्ट्राइक्स वाई। Here, as blow given to Y is no part of the act where A voluntarily causes hurt to Z, A is liable to one punishment for voluntarily causing hurt to Z and another for blow given to Y। क्योंकि ये जो Y को हर्ट उसने पहुंचाया वो टोटली इंडिपेंडेंट है उसके जो वो हर्ट Z को पहुंचा रहा था। ठीक है, उसने बीच बचाव किया। मान लीजिए हमारे स्टेशन में वो 100 लाठी ब्लो जिसको जो मार रहा था उसको भी बचाव करने के लिए कोई आदमी गया, उसने उस आदमी को भी मारा। तो ऐसे में जो जिस दूसरे आदमी को मारा ना, दैट विल बी ट्रीटेड एज एन इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन। तो उसको मान लीजिए सिर्फ हर्ट हुई, तो इन पे अब हो सकता है एक चार्ज लगे कि उन्होंने जो ओरिजिनल पर्सन को जो मारा उसको मारने के लिए चार्ज लगे हर्ट का, और दूसरा चार्ज ये लगे कि जो उन्होंने वाई को मारा। तो दोनों के लिए जब इंडिपेंडेंटली वो कन्विक्ट हो सकता है उन ऑफेंसेस के लिए। पर ये कहना कि जो 100 लाठी ब्लो थे या 50 लाठी ब्लो थे उनके लिए उसे हर्ट के लिए ट्रीट करना चाहिए, नो, दैट कंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी मेड कि हर सिंगल ट्रांजैक्शन हर्ट होगा। उसमें एक होल ट्रांजैक्शन इन इटसेल्फ विल बी कंस्ट्रूड एज हर्ट या ग्रीवियस हर्ट या कोई भी ऑफेंस। ये अप टू फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस है। ठीक है, डू नॉट टेक इट एज अ स्टोन लाइन कि अगर लाठी ब्लो को मैं हर्ट कह रहा हूँ तो वो हर्ट ही होगा। लाठी ब्लो ग्रीवियस हर्ट भी हो सकता है। अब ये भी मैटर करता है जो स्टिक है वो कितनी भारी है। मान लीजिए 100 ग्राम की है, ठीक है, तो लाठी नहीं कहेंगे, डंडी कहेंगे। तो it will go according to the construction of the fact and circumstances and you have to construe it accordingly। और ये फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस आप प्राइमरली देखेंगे कि क्या होता है। वही जैसे मैंने चीटर का भी एग्जांपल दिया कि अगर आदमी चीटिंग करने के लिए फॉर्जरी भी कर रहा है तो आप उसे फॉर्जरी में पनिश कर सकते हैं और चीटिंग में भी पनिश कर सकते हैं। पर जो मिनी ट्रांजैक्शन हैं जो उसने चीटिंग के लिए करने के लिए किए, जो अपने आप में भी चीटिंग होंगे, आप उसको चीटिंग के लिए पनिश नहीं कर सकते। उसको उन छोटी छोटी चीटिंग्स के लिए नहीं कर सकते कि हर चीटिंग का जो हर डिसीट और हर फॉल्स अश्योरेंस को आप अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं। ये नहीं करेंगे। आप एक चीज़ देखेंगे, एक पूरा ऑफेंस देखेंगे कि हाँ, ये इस चीटिंग को अचीव करने के लिए इसने और छोटे छोटी डिसीट्स की थी विच इटसेल्फ अमाउंट टू चीटिंग। तो आप उसको एक चीटिंग का पूरा पार्ट मानेंगे। ऑलराइट, आप उसको अलग अलग नहीं करेंगे। लाइक ब्लोज अंडर द फर्स्ट इलस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 71। पर वहीं पे उसी चीटिंग करने के लिए जो चीटर है वो बैंक को भी डिसीव करता है, तो बैंक को डिसीव करने के लिए उस पर अलग से चार्ज लग सकता है चीटिंग का, वो अलग बात है। इसी तरीके से अगर वो फॉर्जरी करता है, क्योंकि वो अलग ऑफेंस में जा रहा है, अब वो अलग ऑफेंस के इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो अब इस सिचुएशन में वो फॉर्जरी के लिए भी पनिश हो सकता है क्योंकि उस ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स अलग हैं। ऑलराइट, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे वही एक आदमी अगर मान लीजिए let us suppose that he commits murder, ठीक है, और उस मर्डर को करने के लिए वो 56 स्टैब वुंड्स एक बॉडी पे लगाता है। तो अगर हम एक ग्रीवियस हर्ट बाय द यूसेज ऑफ डेडली वेपन्स मान लें उसे, तो बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 326, क्योंकि देखिए उसने चाकू से मारा, अब वो ग्रीवियस हर्ट बाद में कल्पेबल होमिसाइड भी बन के मर्डर भी बन सकती है। मान लीजिए उस पर चार्ज मर्डर का भी लगा है और इन सारे ऑफेंसेस का भी साथ में लगा है। तो अगर मान लीजिए उसने 50 स्टैब वुंड दिए हैं चाकू से, तो आप 326 का पनिशमेंट देखेंगे तो 10 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी जा सकता है। तो अगर मान लीजिए जज क्या उसे ऐसे कैलकुलेट करेगा कि हर एक वुंड को मैं अलग से ग्रीवियस हर्ट मानूंगा, तो हर एक वुंड को अगर वो अलग से ग्रीवियस हर्ट
मानने लगा, तो अगर मान लीजिए कि वो 10 साल देता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं देता है, तो क्या हो जाएगा? इफ़ वी मल्टीप्लाई 10 by 50, तो क्या वो 500 साल के लिए कन्विक्ट कर देगा? द आंसर इज़ नो. वो उसको एक ही ट्रांजैक्शन मानेगा. इट विल कंस्ट्रू इट एज वन ट्रांजैक्शन. सिमिलरली मान लीजिए मैं लेट अस सपोज ए इज़ वॉकिंग आउटसाइड हिज हाउस, उसका एक अल्टरकेशन हो जाता है और दूसरा आदमी उसको कंधे पे 2 बार चाकू मारता है, पैर पे 2 बार चाकू मारता है और 6 बार चाकू वो मारता है उसके लेफ़्ट पैर पे भी. तो टोटल 10 इंजरीज़ हो गई. अब 10 इंजरीज़ हो गई तो 10 इंजरीज़ में क्योंकि उसने चाकू से की तो इट विल फॉल अंडर सेक्शन 326. अब 326 में जब वो फॉल करेगा और 307 में भी वो फॉल करेगा, अटेम्प्ट टू मर्डर भी, क्योंकि इतना इस तरीके से कर रहा है तो हो सकता है उसके अंदर भी चार्ज लग जाए. और लेटर सपोज 307 के चार्ज में नहीं जानता, वो सिर्फ 326 पे आता है. तो 326 पे हम अगर मान लें कि अगर जज इज़ इंक्लाइंड सो टू थिंक कि हर एक इंजरी तो अपने आप में ग्रीवियस हर्ट है और मैं हर इंजरी पे, हर एक ग्रीवियस हर्ट पे इसको 10 साल की सज़ा देना चाहता हूँ अंडर 326 बिकॉज ही यूज्ड इट विद अ शार्प वेपन, नाइफ से उसने किया है. तो 10 into 10, 10 इंजरीज जो अपने आप में ग्रीवियस हर्ट मानी जा सकती हैं इंटू 10, दैट कम्स आउट टू बी 100. तो क्या 100 साल की सज़ा दे देगा? द आंसर इज़ नो. ऑलराइट, इवन दो फॉर द पर्पस ऑफ फ्रैक्शन ऑल्सो इट इज़ कंस्ट्रूड एट 20 years. तो ऐसे ही अगर वो हर ट्रांजैक्शन को जजेस अलग अलग कंस्ट्रू करने लगे तो इट वुड बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ पर्सन टू कम आउट फ्रॉम द कोर्ट प्रोसीडिंग्स एंड ही विल फॉर एवर रिमेन इन जेल अगर कन्विक्ट है. क्योंकि एक ऑफेंस पे इस तरीके से कंस्ट्रक्शन पे तो आदमी को 100 सालों की सज़ा हो रही है. तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन लॉ का नहीं हो सकता. इस पूरे ट्रांजैक्शन को एक ही माना जाएगा, दैट इज़ अ पर्सन कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय द यूसेज ऑफ डेडली वेपन्स ऑन द विक्टिम. और उसको वो माना जाएगा और उसको उनको एक ट्रांजैक्शन को मान के मैक्सिमम टू मैक्सिमम सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट या तो दी जा सकती है या 10 साल के अंदर दी जा सकती है. वो ऐसे नहीं किया जाएगा कि हर एक ट्रांजैक्शन को हर एक ब्लो को एक अलग ट्रांजैक्शन माने, ये नहीं माना जा सकता. ऑलराइट, पर सिमिलरली आज सिचुएशन अलग हो जाती है. अगर कोई दूसरा आदमी मान लीजिए बचाने आया और उसने उसको भी मारा, तो अब यहाँ पे भी इन पे जो ऑफेंडर है इन पे 2 लोगों को 326 में इंजर करने का चार्ज लग सकता है. जो मान लीजिए एक जो ओरिजिनल विक्टिम था, दूसरा इंटरवीनर, तो इंटरवीनर को भी मारने का भी चार्ज लग सकता है बाय और सेक्शन 326 में. तो ये सिचुएशन अलग है. सिमिलरली अगर मान लीजिए वो इलीगली आर्म्स लेके आता है, मतलब एम्यूनेशन आर्म्स एक्ट के वायलेशन में, भले ही इसी ट्रांजैक्शन में करे, लेकिन चूंकि वो एक अलग ऑफेंस के इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका भी चार्ज उस पर लग सकता है. ऑलराइट, तो वो उसमें बार नहीं है. बार सिर्फ इस बात पे है कि अगर एक ब्लो अपने आप में एक माइनर ऑफेंस बना रहा है या अपने आप में ऑफेंस बन रहा है और वही मेजर ऑफेंस भी है, देन इन दैट सिचुएशन यू कैन नॉट ट्रीट एवरी ब्लो सेपरेटली. आप उसको एक ऑफेंस की तरह देखोगे. ऑलराइट, क्योंकि मर्डर के केस, जैसे अगर मर्डर का केस लगता है तो उसमें कई ऑफेंसेस शामिल होते हैं. मर्डर के केस में अगर मान लीजिए गला दबा के मारा है तो उसमें हर्ट भी आएगा, ग्रीवियस हर्ट भी आएगा और कल्पेबल होमिसाइड भी आएगा, फिर दुनिया भर की चीज़ें आएंगी. तो कोर्ट के पास ये है कि भाई अगर मुझे कन्विक्ट करना है इन सब चीज़ों से ऐसे ऑफेंडर को, तो मैं सीधे उसको कर दूं मर्डर में कन्विक्ट. मैं ये नहीं करूँगा कि मैं हर चीज़ को सब डिवाइड कर रहा हूँ, छोटा छोटा छाँट के अलग कर रहा हूँ. मैं देखिए, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ आपके लिए. मर्डर में और इन सारे ऑफेंसेस में अपने बहुत सारे नुआंसेस हैं, पर मैं सिर्फ इलस्ट्रेशन सेक के लिए सिंप्लीफाई कर रहा हूँ. तो कोर्ट क्या करेगा, सीधे उसको मर्डर का कन्विक्शन देगा. वो ये नहीं करेगा उसको वो 3 टुकड़े करके उसे अलग अलग कर रहा है. ऑलराइट, सो डू अंडरस्टैंड दैट इज़ द एसेंस ऑफ सेक्शन 71. सो जस्ट कीप इन माइंड कि आप सर्जिकल डिवीजन ऑफ ऑफेंसेस नहीं करेंगे जहाँ पे एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नहीं है लेजिस्लेचर द्वारा कि आपको करना है. ऑलराइट, तो इसके लिए इलस्ट्रेशन जो दिए गए हैं सेक्शन 71 में उनका बहुत ध्यान रखिएगा. और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए आपको 71 और उसके इलस्ट्रेशन कोट करने ज़रूरी हैं अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है तो.
और 71 को आप रीड करेंगे सेक्शन 29 और 31 एंड 220 ऑफ द CRPC से. ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोविजन, सेक्शन 72, punishment of the person guilty of one of several offences, the judgment stating that it is doubtful of which. In all cases in which the judgment is given that a person is guilty of one of several offences in the judgment, but that is doubtful of which of these offences he is guilty, offender shall be punished with the lowest punishment provided if the same punishment is not provided for all. तो देखिए ये एक मैक्सिम है जिसके हिसाब से कोर्ट जो है ना अबंडेंस कॉशन पे एक्ट करता है. देखिए कोर्ट्स की जो सेंटेंसिंग पॉलिसी होती है कि अगर हमें डाउट है किसी चीज़ को लेके, हमें ये तो पता है इसने ऑफेंस किया है, पर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है एक्सप्रेसली किस चीज़ में ऑफेंस किया है, कौन से पार्ट में एक्सप्रेसली फॉल करता है. तो लेजिस्लेचर ने ऐसे कहा है कि ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है कि जिसमें आपको डाउट हो, तो आप ये कर दें कि जो लोवेस्ट सेंटेंस है तब उस केस में जो लोवेस्ट पॉसिबल पनिशमेंट है वही दें, क्योंकि ऐसे में बड़ा अनसेफ होता है अगर आपने हाईएस्ट दे दिया. अगर आपने हाईएस्ट दे दिया और पता चला कि वो उस ऑफेंस में फॉलो ही नहीं करता था, तो दैट विल बी अ केस ऑफ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस. तो उसी सिचुएशंस को और एक अबंडेंट कॉशन की तरह सेक्शन जो ये है 72 इनैक्ट हुआ है, और उसमें बस इतना ये ध्यान में रखा गया है कि व्हेन देयर इज़ अ डाउट, और ये डाउट होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ द साइन qua non, द मोस्ट एसेंशियल कंडीशन फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 72, दैट इफ द कोर्ट हैज़ डाउट कि द पर्सन इज गिल्टी ऑफ सेवरल ऑफेंसेज बट इट इज़ डाउटफुल ऑफ विच, तो डाउट इज़ वेरी एसेंशियल एंड द पर्सन शुड बी गिल्टी ऑफ सेवरल ऑफेंसेज. तब बताया रजिस्ट्रेशन में कि तब आप उसे लोएस्ट ऑफेंस के लिए सेंटेंस कर दीजिए. ऑलराइट, नाउ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे तो विल डील विद टुमारो. टुडे आई विल जस्ट टेल यू दैट हाउ द रिकवरी इज़ मेड. थोड़ा रिकवरी को लेके बता दो IPC बैच को भी. सो प्राइमरली रिकवरी प्रोसेस ऑफ फाइन आर गिवन अंडर सेक्शन 421 ऑफ द CRPC. ऑलराइट, सेक्शन 421 ऑफ द CRPC बोलता है कि जब भी किसी ऑफेंडर को फाइन का सेंटेंस हुआ है तो कोर्ट उसको दो तरीके से लेवी करवा सकता है. अटैचमेंट ऑफ सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द ऑफेंडर, या वारंट, कलेक्टर को एक वारंट इशू कर दे जिससे वो ऑथराइज हो जाएगा कलेक्टर टू रिकवर फ्रॉम द मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द डिफॉल्टर अमाउंट एज इफ इट वर द अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू. तो लैंड रेवेन्यू की प्रोसीडिंग से कलेक्टर उसको रिकवर करा सकता है, उसको वो ऑथराइजेशन कोर्ट दे देता है कि ये फाइन का अमाउंट है, इसको रिकवर कराइए एज इफ इट वर द अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू. ये ऑप्शन उनके पास अवेलेबल होता है कोर्ट्स के पास. और ध्यान रखिएगा, अगर CRPC में कोई भी कंपनसेशन है जो कोर्ट रिकवर करवाना चाहता है वो भी 421 के प्रोविज़न के हिसाब से करवाएगा. और 431 ऑफ द CRPC में ये भी बात लिखी हुई है कि अगर कोई मनी रिकवर करवाया जाता है कोर्ट से तो वो ऐसे ही रिकवर करवाया जाएगा जैसे कि वो फ़ाइन हो. और फाइन कैसे रिकवर करवाया जाता है? बाय द यूसेज ऑफ सेक्शन 421. अब एक सिचुएशन आती है जहाँ पे आदमी मान लीजिए कहे कोर्ट से कि मैं एक ही बार में सारा अमाउंट फ़ाइन का दे नहीं सकता, मुझे इंस्टॉलमेंट्स में देने का मौका दिया जाए. ऐसी सिचुएशंस में कोर्ट क्या करेगा? तो फॉर दैट पर्पस सेक्शन 424 ऑफ द CRPC बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये अप्लाई किन सिचुएशंस में करता है कि व्हेन द ऑफेंडर हैज़ बीन सेंटेंस टू फाइन ओनली, जब फाइन ओनली का सेंटेंस है एंड द इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन इज़ गिवन. और अगर तब फाइन तुरंत नहीं पे किया गया है तो कोर्ट ये कह दे कि आप 30 दिन के अंदर, मान लीजिए पहली इंस्टॉलमेंट आप पहले 30 दिन के अंदर दे दो, दूसरी इंस्टॉलमेंट आप दूसरे 30 दिन के अंदर दे दो, तीसरी इंस्टॉलमेंट आप तीसरे 30 दिन के अंदर दे दो. ऐसा जो रिकोर्स है कोर्ट कर सकता है कि आप फाइन इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो. और इस पर्पज़ के लिए अगर आदमी जेल में है जो इंस्टॉलमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन की एप्लीकेशन डालता है तो कोर्ट चाहे तो उसका सेंटेंस सस्पेंड भी कर दे, या अगर वो मान लीजिए बाहर है तो उसको बॉन्ड पे रिलीज़ कर दे. दोनों ही केस में ऐसा आदमी बॉन्ड पे रिलीज़ होता है. और अगर मान लीजिए उसने इंस्टॉलमेंट पे अमाउंट नहीं दे पाया तो कोर्ट सीधे कह देगा इनको तुरंत डिफ़ॉल्ट फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइन का सेंटेंस एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दिया जाए, इनको तुरंत जेल में डाला जाए. ये सीधी प्रोसीडिंग्स कोर्ट ले सकता है अंडर सेक्शन
424 ऑफ द CRPC। तो 424 ऑफ द CRPC के लिए क्या एसेंशियल है कि ऑफेंडर हैज़ बीन सेंटेंस टू फाइन ओनली, सिर्फ फाइन ओनली के ऑफेंस से उसे सेंटेंस होना चाहिए, एंड इम्प्रिजनमेंट उसको जो दिया गया है वो डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन पे है, और फाइन तुरंत पे नहीं किया गया है। तो 424 उन सिचुएशंस पे इंस्टॉलमेंट पे भी देने का एक ऑप्शन सोच के रखता है, ठीक है। सो दिस ऑप्शन इज ऑलवेज अवेलेबल विद द कोर्ट्स। डू यू रिमेंबर कि फाइन की रिकवरी करानी है तो आप CRPC के सेक्शन 421, 431 और 422 को साथ में रीड करते हो, चाहे वो कंपनसेशन हो, चाहे वो फाइन हो, चाहे वो अलग हो, क्योंकि CRPC ये भी कहता है कि कंपनसेशन या कोई भी मनी अगर कोर्ट को रिकवर करवाना है तो वो ऐसे ही रिकवर कराएगा जैसे कि फ़ाइन है। लेकिन जो इंस्टॉलमेंट का सीन है कि इंस्टॉलमेंट पे कैसे रिकवर करवाएंगे, उसका स्कोप थोड़ा लिमिटेड है, वो दैट विल गो इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 424, ठीक है, कि आप हर 30 दिन के इंटरवल के अंदर देते रहो। 30 दिन से ज़्यादा का इंटरवल नहीं होना चाहिए। वो जो भी पीरियड कोर्ट फिक्स करे, हो सकता है 15 दिन का करे, हो सकता है 20 दिन का करे, दैट्स इज अप टू द कोर्ट, बट इट शुडंट एक्सीड 30 डेज ऑर्डिनरली। 30 दिन को उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ऐसे केस में कोर्ट कह सकता है कि आप हर 20 दिन या 15 दिन या जो भी पीरियड फिक्स है उसके इंटरवल पे आप एक अमाउंट जमा करते आना। सो दैट इज़ द ऑप्शन अवेलेबल टू द कोर्ट एट ऑल टाइम्स। नाउ विल डील विद द केस लॉज, जैसे Vijayan versus Sadanand, the provision of section 357(3) and 431 of the CRPC when read with section 64 of the IPC empowers the court for making an order for payment of compensation to also include default sentence in the payment for the non-payment of the same। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि नॉन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन के लिए भी डिफ़ॉल्ट सेंटेंस दिया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने विजयन वर्सेस सदानंद में रिकॉग्नाइज किया है, ऑलराइट, क्योंकि उसका जो कंपैरिजन है फाइन के साथ माना है सुप्रीम कोर्ट ने। सिमिलरली इन द केस ऑफ सुगनाथी सुरेश कुमार वर्सेस जगदीशन, उसमें कोर्ट ने हेल्ड किया है कि व्हेन द कि सेक्शन 431 of the CRPC provides that any money other than a fine payable by the virtue of an order made under the code and the method of recovery of which is not otherwise expressly provided for shall be recoverable as if it were a fine. In that view of the matter, compensation awarded under section 357(3) of the CRPC could also be recovered under section 431 of the CRPC in accordance with read with section 421। 431 रीड होता है 421 के साथ, तो यू कैन क्रॉस लिंक इट, विच प्रोवाइड्स फॉर मेथड्स ऑफ द रिकवरी ऑफ फाइन, मतलब प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ फाइन जो प्रोवाइड करता है। इन दिस कनेक्शन जब आप सेक्शन 64 को रीड करते हैं विद सेक्शन टिल सेक्शन 70 ऑफ द IPC ऑल्सो, तो कोर्ट ने ये भी पाया, इस केस में भी रिटरेट किया था वही लॉ, कि जो कोर्ट है वो डिफ़ॉल्ट सेंटेंस इम्पोज विच एम्पावर्स द कोर्ट to impose default sentence for the non payment of fine, उसके नेचर को एक बात करते हुए कोर्ट्स कहते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट सेंटेंस होता है ना, वो सब्सटैंसिव सेंटेंस नहीं होता है अंडर IPC लाइक दैट ऑफ एन ऑफेंस। जैसे कि मान लीजिए कि जो मेन ऑफेंस है जो सेक्शन में, उसमें जो इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, तो जो नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के लिए जो सेंटेंस होता है ना डिफ़ॉल्ट सेंटेंस, वो सब्सटेंसिव सेंटेंस नहीं माना जाता कि आपको ये पूरा का पूरा भुगतना ही होगा। जहाँ पे भी आपने फ़ाइन पे कर दिया पूरा का पूरा, वहाँ पे आपको रिलीज़ किया जाएगा। ये सब्सटेंसिव सेंटेंसेस में नहीं होता कि अगर मान लीजिए कोर्ट ने किसी केस में 3 साल की सज़ा सुनाई है ऑफेंस के अंदर, तो ऑफेंस के अंदर 3 साल की सज़ा भुगतनी होगी, पर साथ में मान लीजिए उसने 6 महीने की सज़ा ऐड की है फॉर डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। तो जहाँ आपने फ़ाइन पे किया, आपको वो जो 6 महीना एक्स्ट्रा था ना फॉर डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, वो भुगतने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ दी ओनली थिंग। नेक्स्ट आई कम टू द केस लॉ ऑफ शांतिलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। अब इसमें अगेन सुप्रीम कोर्ट reiterates कि द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन इज़ नॉट strictly considered a sentence, it is merely a penalty
which a person incurs on the account of non-payment of fine. The sentence is something which the offender must undergo, जो उसको सफ़र करना ही करना पड़ेगा, unless it is remitted in part or whole, either in appeal or revision or appropriate judicial process. A term of imprisonment ordered in default of payment of fine stands on a डिफरेंट फुटिंग. अब डिफरेंट फुटिंग आप तुरंत समझ सकते हैं कैसे. डिफरेंट फुटिंग इसलिए क्योंकि जब आप फाइन का अमाउंट पे कर देते हैं तो आपको जो सेंटेंस था फॉर डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन वो भुगतने की ज़रूरत नहीं होती है. तो ऑलवेज रिमेंबर, लॉ डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ फाइन के सेंटेंस को सब्सटैंटिव सेंटेंसेस की तरह ट्रीट नहीं करता, अलग अलग ट्रीट करता है उनको. एक छोटा सा पॉइंट सेक्शन 71 आईपीसी को लेके ये है कि सेक्शन 71 ऑफ द आईपीसी तब अप्लाई नहीं होता जब इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंसेस अलग अलग होते हैं. ठीक है, मैं एक ब्रश अप समरी कर रहा हूँ एक एक लाइन की जो केस लॉ की है, बिकॉज इसमें कुछ ज़्यादा नुआंस है नहीं. अब तो जब ऑफेंसेस की इंग्रेडिएंट्स अलग अलग होते हैं देन द सेक्शन 71 विल नॉट अप्लाई. इट इज़ ओनली व्हेन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस आर सेम, it is only then when the section 71 of the IPC will apply. संगीता बहन महेंद्र भाई पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, द टेस्ट टू ascertain whether two offences are the same is not the identity of the allegations but the identity of the ingredients of the offence. ये सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 300 की भी डॉक्ट्रिन ऑफ द CRPC और सेक्शन 71 ऑफ द IPC और सेक्शन 26 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट को ध्यान में रखते हुए बोला था. तो मैं 71 के पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ. अभी आप 300 और सेक्शन 26 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट को इग्नोर करिएगा, वो प्राइमरली CRPC के लिए है. CRPC बैच विल अंडरस्टैंड इट बेटर. सो संगीता बहन तो हो गया. फिर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो हार्ड लेबर है, जो इक्विटेबल वेजेस पे करनी होती हैं, ये लॉ जो लेट डाउन हुआ था, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट इन स्टेट ऑफ गुजरात एंड अनदर वर्सेस ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुजरात के जजमेंट जो 24 सितंबर 1998 में डिसाइड हुआ था, उसके बेसिस पे हुआ था. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी और वो ये हैं. फर्स्ट इज, इट इज़ लॉफुल टू एम्प्लॉय प्रिजनर सेंटेंस टू रिगरस इम्प्रिजनमेंट टू डू हार्ड लेबर वेदर ही कंसेंट्स टू डू इट और नॉट. मतलब उसकी बिना कंसेंट के लिए भी आप उसको हार्ड लेबर या रिगरस इम्प्रिजनमेंट है तो बिना उसकी कंसेंट के भी उससे आप हार्ड लेबर करवा सकते हैं. सेकेंड इज, इट इज़ ओपन टू जेल ऑफिशियल्स टू परमिट अदर प्रिजनर्स ऑल्सो टू डू एनी वर्क विच दे चूज टू डू प्रोवाइड सच प्रिजनर्स मेक अ रिक्वेस्ट फॉर सच पर्पस. अगर प्रिजनर्स अलग वर्क करना चाहते हैं जो हार्ड लेबर करने के बाद अलग से, मतलब दे प्रेफर कि मुझे ये वर्क करना है, तो अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं तो प्रिजन अथॉरिटीज़ उनको परमिट कर सकती हैं. थर्ड इज, it is imperative that the prisoners should be paid equitable wages for the work done by them. In order to determine the quantum of equitable wages payable to the prisoner, state concerned shall constitute a wage fixation body for making recommendation. तो wage fixation body for the payment of wages to prisoners has been established in each state. तो देखिए बहुत ज़्यादा नहीं मिलता आपको हार्ड वर्क के लिए, क्योंकि एक सेट अमाउंट होता है जो सील्ड होता है कि मान लीजिए एट एनी गिवन टाइम फॉर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैश जो आप वहाँ पे रख सकते हैं. कई जेल में 2000 है, कई जगह 1000 है, कई जगह 15 रुपये है, लेकिन जनरली मैक्सिमम 2000 है. बाकी जगह अगर आपने बहुत किसी प्रिजनर ने बहुत ज़्यादा काम किया है तो उसको कूपन्स मिलते हैं उसके ऊपर कि हाँ आप ये इंसेंटिव ले सकते हो, आप ये काम कर सकते हो, दैट इज़ अवेलेबल. बट कैश बहुत ज़्यादा उनको नहीं रखने दिया जाता. सेकेंडली एक और चीज़ होती है कि मान लीजिए जो उनकी पे रेट्स होती है वो अराउंड पर एक काम के लिए 20 रुपये 10 रुपये ऐसे होती है. डो नॉट थिंक दैट इज़ अ वेरी हाई पे रेट कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट गारंटीड है. वो कोई एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम नहीं है, वो हार्ड लेबर उनसे उनके पेनेंस के लिए करवाया जाता है. हालांकि अगर आप कोई भी हार्ड लेबर किसी से भी करवाते हो तो इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दैट यू हैव टू पे हिम इक्विटेबल वेजेस, अदरवाइज दैट वुड बी अकेन टू स्लेवरी और बेगार लेबर. ठीक है. सो next point that the Supreme Court dealt with is, until the state government takes any decision on the recommendations, every prisoner must be paid wages for the works done by him at such rates or revised rates as the state government concerned fixes in the light of observation made above. For the purpose, we direct that all state governments to fix a rate of interim wages within 6 weeks from today and report to this court the compliance of this direction. साथ में क्या recommend किया? We recommend that the state concerned
shall make a law for setting apart a portion of wages earned by prisoners to be paid as compensation to the deserving victims of the offence, the commission of which entailed sentence of imprisonment to the prisoner either directly or through common fund to be created for this purpose or in any feasible mode. तो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया. इस तरीके से उन्होंने दो चीज़ों को बैलेंस की. इसमें एक विक्टिम के लिए भी उन्होंने एक चीज़ बोली कि गवर्नमेंट जो है कि एक लॉ बना सकती है कि वेजेस का कुछ पोर्शन विक्टिम को कंपनसेट करने के लिए भी जाए. तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि लेबर्स जो हैं हार्ड लेबर कराया जाएगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं उनको कोई वेजेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहले ऐसा था कि उनको कुछ नहीं मिलता था, दे गॉट नथिंग फ्रॉम इट. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको थोड़ा एक लिबरल आउटलुक करते हुए बोला कि नो, दे शुड बी गिवन सम इक्विटेबल वेजेस. तो बेसिकली कुछ रेट फिक्स हैं. किसी जेल में 1000 रुपये, कहीं 1500 है, कहीं पे 2000 है. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैश दैट अ पर्सन कैन होल्ड, मैक्सिमम. तो ऐसी चीज़ें हैं. कई कई असाइनमेंट्स के 20 रुपये मिलते हैं, कई कई के 10 रुपये मिलते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दैट इट गोस. वो प्रिजन रूल से डिटरमाइन होता है, जेल मैनुअल से डिटरमाइन होता है. सो दैट वाज द गाइडलाइन, दैट वाज फॉर योर इन्फॉर्मेशन. प्राइमरली टुमारो विल डील विद सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, and from then we'll start with the attempt, or if I think so we might start with general exception. So let me see what we'll deal with. I think we should probably start with general exceptions, and then we'll move on to attempt. So this was it so far as the fine and the other provision goes. Tomorrow when we'll deal with the solitary confinement, I will tell you about the judgment of Sunil Batra and some of the problems that are included in solitary confinement, कि उसका मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में क्या लेना है, क्या क्या एंग्जाइटी आ जाती है, क्या क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. तो देखिए, मैंने तो आपके लिए बहुत डिटेल्ड मटेरियल तैयार करके रखा है इसके लिए, फॉर एज फार एज द मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस इज कंसर्न of the effect of the solitary confinement, but you do not need to read it in its entirety अगर आपका मन नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एकेडमिक पर्पस के लिए. लेट अस सपोज यू वांट टू अंडरस्टैंड कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से कोई इफेक्ट क्यों क्रिएट होता है, ऐसा पागलपना क्यों इंड्यूस हो जाता है, एंग्जाइटी क्यों इंड्यूस हो जाती है, या इमोशनल या मेंटली आदमी डिस्टर्ब क्यों हो जाता है. इफ़ यू वांट टू नो यू मे रीड इट. एग्जाम के पर्पज से वो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, लेकिन हाँ इंटरव्यू के पर अगर कभी इंटरव्यू में जाएंगे और कभी इससे सवाल जवाब हो गए तो बहुत रेलेवेंट होगा. अगर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो जब भी आपको कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस करवाना है ना, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के इफेक्ट्स जजेस को ढंग से बताने होते हैं. जजेस को पता होता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड इट्स इफेक्ट इन ऑर्डर टू frame your arguments in the most appropriate way, so that you can convince the benches and to convince them to produce a result in accordance with your desire. ठीक है. So if you want to do that, if you want to be a good practicing lawyer, you also need to know about the medical jurisprudence and the effect of the psychological effect of solitary confinement. So primarily understand that you can only read it. जो स्टडी मटेरियल इसका है, क्योंकि मैंने जुडिशल डिसीजंस के नीचे ही रखा है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. इफ़ यू वांट टू रीड इट यू मे रीड इट, इफ़ यू डोंट वांट टू रीड इट डोंट रीड इट. ठीक है. तो टुमारो विल डील विद दैट कि क्या क्या इफेक्ट होते हैं उसके. इवन माई सेल्फ विल बी डीलिंग इन आई विल जस्ट डील विद ऑन अ वेरी सुपरफिशियल लेवल. बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगा मटेरियल, लेकिन काफ़ी डिटेल में है जो मैंने आपके लिए तैयार करके रखा है. सो यू कैन रेफर इट इफ़ यू वांट टू.